Hello students, hope you are doing great. I Anil Banram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 9 of the chapter Cash Flow Statements. We will be discussing part C of the topic 4 now. In this topic, we will solve practical questions covering all the activities of cash flow statement, that is operating, investing and financing activities, and make a complete cash flow statement. Question number 20. Following is the balance sheets of Akash Limited as at 31st March 2023. Balance sheet as at 31st March 2023. Particulars: note number 31st March 23, 31st March 22 in rupees. Equity and liabilities, shareholder funds, share capital, current year 15 lakhs, previous year 14 lakhs. Reserve and surplus, note number 1, current year 2,50,000, previous year 1,10,000. Non-current liabilities, long-term borrowings, current year 2 lakhs, previous year 1,25,000. Current liabilities, short-term borrowings, note number 2, current year 12,000, previous year 10,000. Trade payables, current year 15,000, previous year 83,000. Short-term provisions, note number 3, current year 18,000, previous year 11,000. Total of equity and liabilities, current year 19 lakhs 95,000 and previous year 17 lakhs 39,000. On the asset side, we have non-current assets. Under non-current assets, we have fixed assets. Under fixed assets, we have tangible assets. Note number 4. Current year 18 lakh 60,000 and previous year 16 lakh 10,000. Intangible assets. Note number 5. Current year 50,000, previous year 30,000. Under current assets, we have current investments. Current year number 8,000, previous year 5,000. Inventory, current year 37,000, previous year 59,000. Trade receivables, current year 26,000, previous year 23,000. And cash and cash equivalents, current year 14,000 and previous year 12,000. Total of assets is current year 19 lakhs 95,000, previous year 17 lakhs 39,000. Then notes to accounts. Note number particulars: 31st March 23 and 31st March 22, amount in rupees. Note number 1, reserve and surplus, and this represents surplus balance in the statement of profit and loss. So current year 2,50,000, previous year 1,10,000. Note number 2, short term borrowings is bank overdraft, which is current year 12,000 and previous year 10,000. Note number 3, short term provision, this represents provision for tax, current year 18,000 and previous year 11,000. Note number 4 represents tangible assets, which includes machinery at a gross value 20 lakhs current year and previous year 17 lakhs, and accumulated depreciation current year 1,40,000 and previous year 90,000. And note number 5, with respect to intangible assets, these are patents, current year 50,000 rupees and previous year 30,000 rupees. Then some additional information has been given. Point number 1, tax paid during the year amounted to rupees 16,000. Second, machine with a net book value of rupees 10,000, accumulated depreciation rupees 40,000 was sold for rupees 2,000. Prepare the cash flow statement. So students, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कंपनी आकाश लिमिटेड और उसकी बैलेंस शीट दे रखी है एज एट 31st March 23 एंड एज एट 31st March 22. बैलेंस शीट में जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये क्या आइटम्स हैं, और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस साल में जो है टैक्स पे किया गया 16,000 रुपए, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि एक मशीन है जिसकी नेट बुक वैल्यू है 10,000 रुपए, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40,000 रुपए, तो इसका मतलब उसकी ग्रॉस वैल्यू होगी 50,000, ये जो है बेच दी गई 2,000 रुपए की। हमारे को जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। सो स्टूडेंट्स, आइए एज ए फर्स्ट स्टेप जो है हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में जो नंबर्स का मूवमेंट हुआ है आइए वो हम निकाल लेते हैं। तो इसमें सिंपल करना होता है, हमने करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का नंबर डिडक्ट कर देना है और वैल्यू नोट कर लेनी है। सो शेयर कैपिटल 15 lakhs माइनस 14 lakhs, सो मूवमेंट हो गया 1 लाख रुपए का। रिजर्व एंड सरप्लस में 2,50,000 माइनस 1,10,000, मूवमेंट हो गया 1,40,000 का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया 2 लाख माइनस 1,25,000, 75,000 रुपीज का मूवमेंट हुआ। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 12,000 माइनस 10,000 यानी कि 2,000। ट्रेड पेबल्स 15,000 माइनस 83,000 यानी कि 68,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 18,000 माइनस 11,000 मतलब 7,000 रुपीज। आगे बढ़ते हुए टेंजिबल एसेट्स 18,60,000 minus 16,10,000, 2,50,000. Then intangible assets 50,000 minus 30,000, 20,000 rupees. Current investments 8,000 minus 5,000 matlab 3,000 rupees, and this will form a part of cash and cash equivalents.
Then inventory is 37,000 minus 59,000 rupees. This is 22,000 rupees. Trade receivables 26,000 minus 23,000 rupees, matlab 3,000 rupees. And cash and cash equivalents will form part of cash and cash equivalents movement in the cash flow statement. So I am not putting the movement over here. Now let us discuss students कि ये जो movements हैं सारी की सारी ये किस किस प्रकार की हमारी एक्टिविटीज हैं। इनमें से फटाफट जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी जो है इन्वेस्टिंग है और कौन सी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। सो शेयर कैपिटल में जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बीच में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की स्टूडेंट्स बात करें तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनता है। और आगे ये करंट लाइबिलिटीज आ गई हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है ये हमारा स्टूडेंट्स ये फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा, क्योंकि हमारे को दे रखा था कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, सो इसलिए जो है इसकी मूवमेंट जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगी। ट्रेड पेबल्स स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्योंकि इसमें नोट दे रखा है तो हमारे को जो है एक जनरल लेजर्स का बना के हमारे को उसकी मूवमेंट देखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स जो प्रोविजन क्रिएट किया है वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा और क्या टैक्स पे किया है वो भी ऑपरेटिंग में जो है एज ए माइनस आइटम आ जाएगा। टैंजिबल एसेट्स जो हैं ये स्टूडेंट्स इसकी कोई भी मूवमेंट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी। अगेन इसका भी हमें जनरल लेजर बनाना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। और नीचे करंट लायबिलिटीज में हमारी इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारा ऑपरेटिंग का जो है पार्ट बनेगी। सो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मशीनरी की वैल्यू जो है करंट ईयर 20 लाख है, प्रीवियस ईयर 17 लाख है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू करंट ईयर 1,40,000 और प्रीवियस ईयर जो है 90,000 है। साथ में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई थी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि एक मशीनरी है जिसकी नेट बुक वैल्यू है 10,000, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगी 40,000 रुपए की, यानी कि इसकी ग्रॉस वैल्यू हो गई 10,000 जमा 40,000 50,000, उसको बेच दिया गया 2,000 पे। मतलब 10,000 की जो नेट बुक वैल्यू की चीज है 2,000 में बेच दी गई, इसका मतलब 8,000 का नुकसान हो गया। सो आइए जो है इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में स्टूडेंट्स इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, सबसे पहले कैश आया 2,000 रुपए का, सो कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज। उसके बाद जो है हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी है 40,000 रुपए, ये हमारी डेबिट हो जाएगी स्टूडेंट्स 40,000 रुपीज। और हमारी मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू है 40,000 प्लस 10,000 रुपीज, यानी कि हम मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे अपना 50,000 रुपीज से 10,000 प्लस 40,000 रुपीज। और बाकी जो बचा हमारा जो है, जो हमें पता है वो 10,000 माइनस 2,000 यानी कि 8,000 रुपए का लॉस हुआ है हमारे को। तो उसके लिए जो है हमने लॉस एंड सेल अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा स्टूडेंट्स। सो हमारी जर्नल एंट्री बन गई है, हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग के नंबर दिए हुए हैं। आइए जो है कि हम अपने जो है मिसिंग नंबर्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या कोई परचेज हुई है मशीनरी की और हमारे पास डेप्रिसिएशन का नंबर जो है ड्यूरिंग द ईयर वो भी नहीं है हमारे को, क्योंकि वो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है उसको ऐड बैक करना पड़ता है एज ए नॉन कैश आइटम। सो उसके लिए बेटर है हम जो है दो जनरल लेजर बनाएं, एक जो है हमारा मशीनरी अकाउंट का स्टूडेंट्स और दूसरा जो है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो है हमारे को एक जनरल लेजर बना लेना चाहिए। ये स्टूडेंट्स हमने जो है नोट्स और अकाउंट्स में बनाने हैं, ये हमारा मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है पार्ट नहीं होता। सो मशीनरी अकाउंट पर्टिकुलर्स एंड एन अमाउंट ऑन डेबिट साइड एंड ऑन क्रेडिट साइड, इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस से। मशीनरी एसेट होती है, एसेट का नेचुरल बैलेंस डेबिट है, सो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस है 20 लाख रुपीज, सो हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD 20 लाख रुपीज। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो है ये बैलेंस क्रेडिट होता है, सो 90,000 रुपीज जो है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 90,000 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस को हमने जो है डेबिट साइड पे लिख देना एज ए लास्ट आइटम टू बैलेंस CD 1,40,000 रुपीज। इसके बाद ये जो हमने जनरल एंट्री डाली है इसकी जो है हम पोस्टिंग कर लेते हैं। सो मशीनरी के जो है क्रेडिट साइड पे जो है हमने ये 3 एंट्रीज डाल देनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट से। सो बाय कैश अकाउंट सेल ऑफ मशीन के रूप में आया है ये 2,000 रुपए। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000 रुपीज। और चूंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हमारे यहाँ नीचे लेजर बना हुआ है, सो हम इसकी दूसरी पोस्टिंग यहाँ पे भी कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट विच इज 40,000 रुपीज।
नाउ कैश अकाउंट हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस एंड सेल अकाउंट जो है हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे बाय P&L अकाउंट, लॉस एंड सेल विच इज 8,000 रुपीज। इसके बाद मशीनरी अकाउंट में स्टूडेंट्स कुछ लगना नहीं है, सो आइए जो है हम टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड बड़ी है, उसका जो हमने टोटल किया जो है और टोटल निकल के आ गया हमारा 20,50,000। इसको यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, 20,50,000 माइनस 17 लाख जो है ये हमारा आ गया 3,50,000 रुपये। और ये जो है 3,50,000 जो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है, दिस इज टुवर्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी और हम इसे लिखेंगे टू कैश। सो परचेज ऑफ मशीनरी के लिए जो है 3,50,000 पे किया हुआ है, इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज ए कैश आउटफ्लो दिखा देंगे स्टूडेंट्स। आइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी अब कुछ और एंट्रीज तो रिकॉर्ड नहीं होनी है, तो आइए टोटल लगा देते हैं स्टूडेंट्स। बड़ी साइड है डेबिट, तो 1,80,000 रुपये टोटल आ गया, इसको यहाँ कॉपी किया, 1,80,000 में से 90,000 माइनस किए तो 90,000 रुपये जो है डेप्रिसिएशन निकल के आ गई बैलेंसिंग फिगर। सो ये जो है करंट ईयर की स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन हो गई है। सो आइए जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या क्या आइटम आएंगी उसको जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो जो मशीन बेच के जो है कैश आया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो आ जाएगा। जो मशीनरी अकाउंट में टू कैश दिखाया परचेज ऑफ मशीनरी, सो ये जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो है कैश आउटफ्लो चला जाएगा। P&L अकाउंट जो है लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने दिखाना है। और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एज ए नॉन कैश आइटम स्टूडेंट्स निकल के आ जाएगी। स्टूडेंट्स हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी थी बैलेंस शीट में कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो है करंट ईयर का बैलेंस है 18,000 रुपीज और प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 11,000 रुपीज। साथ में हमारे को नोट्स अकाउंट में स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 16,000 रुपीज। सो हमारे को जो है करंट ईयर का कितना प्रोविजन क्रिएट किया गया है उसके लिए जो है हमारे को प्रोविजन फॉर टैक्स का हम जनरल लेजर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो है आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि ये वर्किंग नोट से बनाना है स्टूडेंट्स आपने। This doesn't form part of the main cash flow statement. So ओपनिंग बैलेंस है हमारा 11,000 रुपये, प्रोविजन फॉर टैक्स का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 11,000 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस है 18,000 रुपीज, तो हम लिख सकते हैं टू बैलेंस CD विच इज 18,000 रुपीज। उसके बाद इंफॉर्मेशन है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 16,000 रुपीज। सो ये स्टूडेंट्स हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट विच इज 16,000 रुपीज। इसके अलावा और कोई एंट्री पोस्ट नहीं करनी है, तो हम टोटल लगा देते हैं 16,000 प्लस 18,000 इज 34,000 रुपीज। और यही दूसरी तरफ हमने कॉपी किया, 34,000 माइनस 11,000 इज 23,000 रुपीज। सो ये निकल के आ गया प्रोविजन जो हमने क्रिएट किया है ड्यूरिंग द ईयर। सो इसमें हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,000 रुपीज। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या नंबर लेके जाने हैं। सो एक जो ये हमने टैक्स पे किया है वो, और ये जो है हमने जो प्रोविजन क्रिएट किया है वो। सो ये दोनों जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेंगे स्टूडेंट्स। इसे जो है हम P&L में ऐड बैक कर देंगे जो प्रोविजन क्रिएट किया है, और जो इनकम टैक्स पे किया है ये एज ए लास्ट आइटम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें दिखानी होती है। स्टूडेंट्स हमारे को जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए जो है सबसे पहली आइटम होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ये जो है हम वर्किंग नोट में बनाते हैं। सो हमने दो वर्किंग नोट पहले डिस्कस कर लिए जिसमें हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था। उसके बाद दूसरा वर्किंग नोट हमने जो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था। आइए स्टूडेंट्स हम तीसरा अपना वर्किंग नोट बनाते हैं जिसके बीच में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। सो हमारा थर्ड वर्किंग नोट, उसमें हम कंप्यूट करने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है मूवमेंट 2,50,000 करंट ईयर का बैलेंस है और प्रीवियस ईयर 1,10,000 है। सो इसका मतलब 2,50,000 माइनस 1,10,000, 1,40,000 जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मूवमेंट हुआ है। सो नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग P&L विच इज जो कि अभी हमने निकाला 1,40,000 रुपए। इसमें जो है हमने स्टूडेंट्स ऐड कर देना है जो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है हमने क्रिएट किया था। प्रोविजन फॉर टैक्स जो अभी हमने जो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में अभी हमने कंप्यूट किया है विच इज 23,000 रुपीज। सो आइए स्टूडेंट्स इसको ऐड कर देते हैं, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर विच इज 23,000 रुपीज। सो इसको 23,000 को जो है हम 1,00,000
40,000 में स्टूडेंट्स हम ऐड कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स विच विल बी 1,63,000 रुपीज। स्टूडेंट्स आइए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी बनानी शुरू करते हैं। हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल लिया इन द वर्किंग नोट्स विच इज 1,63,000 रुपीज। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमें नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड करना होता है। सो एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसमें जो है क्या क्या आइटम्स ऐड करनी है आइए वो देखते हैं। ऐड आइटम्स टू बी एडेड। नॉन कैश आइटम्स में स्टूडेंट्स एक हमारी होती है डेप्रिसिएशन। सो हमने 90,000 रुपए की जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी है ड्यूरिंग द ईयर, उसके अगेंस्ट में कोई कैश नहीं गया, नॉन कैश आइटम है। सो आइए उसको ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन विच इज 90,000 रुपीज। उसके बाद अगर हम अपना मशीनरी अकाउंट देखें तो उसके बीच में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है 8,000 रुपीज। इसमें भी स्टूडेंट्स कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। सो ये नॉन कैश आइटम है। सो आइए इसको भी हम ऐड कर देते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन विच इज 8,000 रुपीज। 90,000 और 8,000 को हम 1,63,000 में स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो आइए इसको नोट कर लेते हैं, 1,63,000 प्लस 90,000 प्लस 8,000 विच इज 2,61,000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक निकाल लिया था। अब हमारे को जो है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं वो हमने एडजस्ट करनी है। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। हम देखते हैं कि करंट एसेट्स में कितना डिक्रीज हुआ है। सो करंट एसेट्स में केवल इन्वेंट्री में हमारा डिक्रीज हुआ है जो कि 22,000 रुपये है। सो आइए इसको नोट कर लेते हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज विच इज 22,000 रुपीज। इसके बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज देखें स्टूडेंट्स तो एक ही करंट लायबिलिटी है हमारी ट्रेड पेबल और उसमें भी डिक्रीज हुआ है। सो और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं है। सो आइए एज ए नेक्स्ट आइटम हमने लेस कर देना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब हम देखते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हुआ है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारा इंक्रीज हुआ है। सो हम लिख देंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 3,000 रुपीज और किसी करंट एसेट्स में तो कोई इंक्रीज नहीं है। हाँ अब देखते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। सो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज देखते हैं तो ट्रेड पेबल्स में हमारा डिक्रीज हुआ है। सो हम लिख लेते हैं डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स विच इज 68,000 रुपीज। आइए 2,61,000 में जो है हम 22,000 रुपीज ऐड कर देते हैं और 3,000 माइनस कर देते हैं, 68,000 माइनस कर देते हैं। अपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस सो विच इज 2,12,000 रुपीज। इसके बाद जो है जो हमने इनकम टैक्स पे किया था स्टूडेंट्स जो कि 16,000 रुपये था वो हमने माइनस कर देना है। लेस इनकम टैक्स पेड 16,000 रुपीज और हमारा निकल के आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,12,000 माइनस 16,000 रुपीज विच इज 1,96,000 रुपीज। स्टूडेंट्स हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लिया है। सो एज ए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना होता है स्टूडेंट्स। सो हम आइए उसको कंप्यूट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है स्टूडेंट्स हमें पता है या ये फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड परचेज और सेल या जो है हमारी इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड परचेज और सेल या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड परचेज एंड सेल से जो है जनरेट होता है। सो अगर हम अपना फिक्स्ड एसेट्स देखें मशीनरी अकाउंट तो हमारे को जो है 2,000 रुपये का जो है यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी से जो है हमने कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। सो आइए स्टूडेंट्स उसको हम नोट कर लेते हैं, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच इज 2,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट जो है हमने 3.5 लाख रुपए की मशीनरी भी खरीदी है। सो ये कैश आउटफ्लो है स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो कि है माइनस में 3,50,000 क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। इसके साथ ही जो है इंटेंजिबल एसेट्स हम देखते हैं तो 30,000 से 50,000 हो गए यानी कि 20,000 रुपए के खरीदे गए हैं। सो आइए ये भी नोट कर लेते हैं, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स क्योंकि परचेज है कैश आउटफ्लो है तो माइनस 20,000। इसके अलावा कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है नहीं स्टूडेंट्स हमारा। सो हम लिख लेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3.5 लाख में 20,000 ऐड किया और 2,000 माइनस किया। सो 3,68,000 जो है हमारा आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाल लिया है। सो नाउ एज ए नेक्स्ट स्टेप हमारे को जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालना है। सो आइए उसको भी हम कंप्यूट कर लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने जो शेयर होल्डर फंड्स में क्या मूवमेंट हुई है, लोन्स एंड बोरिंग्स में क्या मूवमेंट हुई है, हमें वो देखनी होती है। सो जब हम अपनी शेयर कैपिटल देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि 14 लाख से 15 लाख हो गई है। सो इसका मतलब 1 लाख रुपए का जो है शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज तब होता है जब शेयर्स इशू किए जाते हैं। सो हम
1 लाख रुपया जो है जो इनफ्लो हुआ है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स उसको नोट कर लेते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर विच इज 1 लाख रुपी। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखें तो उसमें 1,25,000 से 2 लाख बैलेंस हो गया है, बैलेंस इंक्रीज हो गया है और इसका मतलब है 75,000 रुपये से लोन और लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि कैश इनफ्लो आ गया है। सो हम लिख लेंगे प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 75,000 रुपीज, क्योंकि इनफ्लो है तो स्टूडेंट्स के पॉजिटिव में है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट था, इसमें 10,000 से 12,000 हो गया, 2,000 रुपये से बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज हो गया है, तो ये भी एक इनफ्लो है स्टूडेंट्स। सो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 रुपीज। इसके अलावा कोई और इनफ्लो है नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, तो हम निकाल लेते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 1 लाख जमा 75,000 जमा 2,000 मतलब 1,77,000 रुपये। सो स्टूडेंट्स अब हमने जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लिया था जो कि 1,96,000 रुपये था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारा आउटफ्लो है 3,68,000 रुपये और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमारा कैश इनफ्लो है। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके 5,000 रुपये आ रहा है। 1,96,000 माइनस 3,68,000 रुपये जमा 1,77,000 रुपये। सो ये 5,000 रुपये निकल के आया, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सो इसका मतलब हो गया ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसे अब हम अपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग से मैच कर लेंगे स्टूडेंट्स। उन दोनों के बीच की मूवमेंट जो है अगर 5,000 आ रही है तो हमारा कैश फ्लो टैली हो गया है। So students, net increase in cash and cash equivalents from all the three activities is 5,000 rupees. आइए जो है इसमें हम ऐड कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम देखें तो 12,000 रुपये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और करंट इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि ये करंट एसेट्स के अंदर आ रही थी, सो ये भी जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बनेगा स्टूडेंट्स। सो आइए इसको नोट कर लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 12,000 रुपीज एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स 5,000 रुपीज। सो 12,000 प्लस 5,000 हो गया 17,000 रुपीज। सो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आना चाहिए स्टूडेंट्स 5,000 प्लस 17,000 22,000 रुपीज। आइए अभी चेक कर लेते हैं। और इसके बाद जो है हमने मेंशन करने हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। सो इसके बीच में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है हमारे 14,000 रुपये और हमारा इन करंट इन्वेस्टमेंट्स है 8,000 रुपीज। सो 14,000 प्लस 8,000 रुपीज इज 22,000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कंप्लीटली हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच हो गई है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5,000 रुपीज है। इसमें हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने 17,000 ऐड किया, सो 22,000 रुपीज जो है निकल के आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। इसे जो है हमने बैलेंस शीट के नंबर से भी मैच कर लिया। 14,000 प्लस 8,000 22,000 रुपीज निकल के आया। सो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो गया है और ये कंप्लीटली मैच हो गया है। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.